بچوں کو یاد کروایا جا رہا ہے اس قرارداد کو پیش کرنے والا کون تھا, صدارت کس نے کی تھی. تو کم از کم اسلام کے بچوں کو بھی اتنا تو بتانا کہ تیرے اسلام کی پہلی قرارداد کس کے گھر میں پیش ہوئی تھی. یہ بھی تو بچوں کو یاد ہونا چاہیے. اگر بندوں کو یاد ہو نہ ہو, تیرے اسلام کی جو پہلی قرارداد تھی وہ جس کے گھر میں پیش ہوئی, اس گھر کے مالک کو ابو طالب کہا جاتا ہے. روایت میں نے پڑھی ہے نا, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, میرے قریبیوں کو دعوت ایمان دے. جو ہے سب کا حکم خدا ہوا اپنے قریبیوں کو دعوت ایمان دے. یہ میں نے ترجمہ کیا, حالانکہ قرآن ہے وَأَنذِرْ, یعنی اپنے قریبیوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ, اللہ کے عذاب سے ڈراؤ. عجیب لطف والا معاملہ ہے کہ پہلا گھر جو قرارداد اسلام جہاں پاش ہوئی وہ گھر ابو طالب کا تھا. اور لطف والا معاملہ میرے جوانوں یہ ہے کہ اللہ کا اپنا گھر بھی مکے میں تھا. جس جملے کے لیے میں نے بات کی ہے, میں کوشش کرتا ہوں عام روایات سے ہٹ کے گفتگو کی. اللہ کا اپنا گھر جو ذاتی ہوم تھا وہ کہاں پہ تھا؟ وہ بھی مکے میں. اللہ کا اپنا گھر بھی مکے میں ہے, لیکن اللہ نے یہ اتنی اہم دعوت اپنے گھر میں نہیں رکھی, ابو طالب کی حویلی میں رکھی. اسے اللہ نے زبان بھی لیا. مکے میں اللہ کا اپنا پرسنل ہوم جو ہے وہ بھی مکے میں تھا, جو مختص ہی اللہ کا ہے. حالانکہ اللہ کو گھر کی ضرورت نہیں, نہ اللہ اس میں آ کے رہے گا, جو فرما رہے ہیں سب کا. لیکن اللہ نے یہ گھر بنوایا کیوں؟ فرمایا اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. تحقیق یہ گھر بنایا اس لیے ہے تاکہ عالمین کو ہدایت ملے. سیانے بندے ہو, ڈھیر سارے بندے ہو, میرے لیے قابل عزت لفظ کہنا چاہ رہا ہوں. حالانکہ ہدایت گھر نہیں کرتا, گھر والے کرتے ہیں. میں نے زحمت فرمانے ہر بندہ, میں نے گزرتے ہوئے کئی دفعہ آپ نے بھی کہا ہوگا اس ہاسپٹل سے مجھے شفا ملی تھی. حالانکہ نبض ہاسپٹل چیک نہیں کرتا, ٹیکہ ہاسپٹل نہیں لگاتا, دوائی ہاسپٹل نہیں دیتا, تو بندے کیا کہتے ہیں اس جگہ سے مجھے شفا ملی. یعنی اس کا مطلب ہے اندر کوئی ڈاکٹر تھا. میں تمہید ختم کر گیا ہوں, اندر کوئی ڈاکٹر تھا. بندے کہتے ہیں گزرتے ہوئے کہتے ہیں نا اس جگہ سے میں پڑھا ہوں. حالانکہ ہوم ورک سکول چیک نہیں کرتا, کام سکول نہیں دیتا, بلڈنگ کچھ بھی نہیں کرتی, اندر کوئی ٹیچر ہے. اللہ نے یہ گھر بنایا ہے ہدایت کے لیے, دیواریں ہدایت نہیں کرتی, اندر کوئی حاتم موجود ہے. ایسے نعرے سے کوئی پابندی لگی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. بات پہنچ رہی ہے سب کہ وہ گھر اللہ نے اپنا گھر چھوڑا. بھائی ناصر جی سیانے بندے ہو, اپنا گھر چھوڑ کے دوسرے کے گھر میں پروگرام وہ کرواتے ہیں جس کا جگہ تنگ ہو یا دل تنگ ہو. نہ اللہ کی جگہ تنگ ہے نہ اللہ کا دل تنگ ہے, تو پھر حویلی کیوں استعمال کی گئی؟ متفق کا علیہ ذمہ داروں میں لفظوں کا علماء نے لکھے حویلی اس لیے استعمال کی گئی, توجہ چاہوں گا میں, حویلی اس لیے استعمال کی گئی تاکہ اللہ کے گھر میں بت تھے. یا سنی علماء نے لکھے اللہ کے گھر میں بت بنے ہوئے تھے, اس لیے دعوت ذوالعشیر جو ہے وہ اللہ کے گھر میں نہیں ہوئی کہ اتنا پاکیزہ توحید کا اعلان بت خانے میں نہیں ہوتا. پھر کہنے کا حق رکھتا ہوں, اس کا مطلب ہے اللہ کے گھر میں بت تھے, عمران کی حویلی میں نہیں. اللہ نے اتنا پاکیزہ اعلان کروایا. آج بھی سیانے بندے, نون کا جلسہ پی ٹی آئی والے اپنے گھر نہیں ہونے دیتے. پی ٹی آئی والے بلا نون والے پی ٹی آئی کا جلسہ اپنے گھر نہیں ہونے دیتے. اور اسلام کے ٹھیکیدار ہو, اسلام کی باتیں کرنے والوں, اسی بات پہ تو ایمان ابو طالب ثابت ہو جاتے ہیں. تیرے اسلام کا پہلا جلسہ
हुआ किसके घर में था। नारे हैदरी। आज मेरी बड़ी सादा सादा गुफ्तगू है कि बोला दावत का इंतजाम करवाया मेरे नबी ने, तवज्जो रहे, किया है अली इब्ने अबी तालिब, जो दावत जुला शीर हुई। हम जेड़े बंदे तोहफा तो आम कर दे, भाई साहब कल्ला बंदा भी दाल दे देना, तेरी मेहनत पूरी है। वो मेरे लफ्ज बड़ा बारीक है, मैंने जानबूझ के कहा। अल्लाह ने अलिफ वाले अकरब मंगवाए थे, आयन वाले अकरब गए। एक बंदा तो समझेगा कि मैं किया। अल्लाह ने अलिफ वाले अकरब मंगवाए थे, आए ऐन वाले अकरब। समझो है, जाके पढ़ लिया जे ये 10-12 अकरब है। तवज्जो रहे, बस मैं इतने आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। इबला 40 बंदे आ गए थे भी नबी के अपने खानदान के, वो आ गए। अब इन्होंने खाना खिलाया, नबी उठ के बात करने लगा। अबू लहब उठा, उसने कहा तकरीर नहीं सुनी, उठ के चले गए। अब करीब था कि नबी का दिल टूट जाता कि सरकार अबू तालिब फरमाते जाओ जरूर, लेकिन कल प्रोग्राम फिर इसी घर में इसी जगह पे होगा। वो तो ना बंदा का लिया ना आकर लंगर का टाइम पूछा। हम बड़ा बारीक है जुड़ा, इसका मतलब है कि काफर भी लंगर खा लेते हैं, बयान नहीं सुनते। नहीं जेडे समझ दो कि मैं की अर्ज कर रहा। उन्होंने आके दूजे दिन का टाइम पूछा कि लंगर का की टाइम, बयान में छो लंगर की गल कर। अब लंगर पे आ गए, दूसरे दिन उसी तरह लंगर खाया कि बोला उठ के चले गए। तीसरे दिन लंगर वो फिर जान लगे तो सरकार अबू तालिब फरमाया कल फिर लंगर दे। ये मेरे नबी ने दर्स दी है, ये किरदार मुस्तफ़ा है। अल्लाह कहता है डरा, नबी कहता है खिला। नहीं आए थे रवायत नहीं, अल्लाह ने कहा वाहन फिर अशीरतकल अकरबीन, अपने करीबियों को अल्लाह के खौफ से डरा। नबी के किरदार ने बताया अगर किसी को डराना भी चाहते हो तो पहले खिलाओ। समझ चाहूंगा मैं, पहले खिलाओ। और ये किरदार मुस्तफ़ा है। अगर आप हमें काफिर समझते हैं कि ये बंदे काफिर हैं, तो मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ हमें फतवे ना दिखाओ, हमें दावत पे बुलाओ। मैं बड़ी खुले जहन से बात कर रहा हूँ, फिर हमें फतवे वगैरह ना दिखाओ, हमें दावत पे बुलाओ, दस्तरखान सजाओ। तो जो है सरकार, फिर खाना खिलाओ, फिर बात सुनाओ। सरकार अबू तालिब ने 2 दिन बंदों को खिला के भेज दिया। तीसरे दिन किबला खाना खाने के बाद लफ्ज जिनके सीने चल रहे हैं, थोड़ा मिजाज है तो मैं लफ्ज आकर मैंने किबला एक तरफ से अबू लहब उठा, दूसरी तरफ से अबू तालिब उठा। तारीख का मैं जिम्मेदार हूं। एक तरफ से मंबा शर उठा, एक तरफ से पैकर शराफत उठा, एक तरफ से बुत प्रस्त उठा, एक तरफ मोहम्मद का सरप्रस्त उठा। एक बंदा तो बात लेगा कि बड़ा। अब जब अबू लहब उठा, जाने के लिए बंदों को कहने लगा, सरकार उठे। सरकार फरमाते उठ मेरा बेटा बात कर। जब कहा ना उठ मेरा बेटा बात कर, मेरे नबी ने और सरकार अबू तालिब ने उन बंदों की तरफ देख के फरमाया आज जो गया वो जिंदा नहीं रहेगा। मैं जिम्मेदार हाँ अपने लफ्ज़ों में। 3 दिन उन्होंने कख नहीं आख्या, 2 दिन लंगर खवा के घल दे रहे। तीजे दिन सरकार अबू तालिब फरमाया आज जड़ा गया ना, तारीख तबरी वाले ने लिखा जिसकी सांसें जहां थी वही रुक गए। एक आवाज पे 40 बंदों का बैठना बता रहा था अबू तालिब का अरब में वजन कितना था। फरमाते उठ मेरा बेटा बात कर। मेरे नबी उठे। मेरे नबी फरमाते मैं तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत की अच्छाइयाँ लेके आए। मैं तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत की अच्छाइयाँ लेके आए। आओ अल्लाह के दीन पे चलो, उसे वादा उला शरीक मानो, मुझे उसका रसूल मानो, अच्छे बुरे की तमीज़ रखो, हराम हराम है
सारी दावत जुलशीर एक लफ्ज में पढ़ रहा हूँ। ये कहने के बाद मेरे नबी फरमाते कि जो मेरे इस मिशन में मेरा साथ देगा वो मेरा वसी भी होगा। इनकी तारीख पे नजरें। किबला कहते हैं कि एक 9 साल का बच्चा उठा, 9 साल के बच्चे, पहला अहले सुन्नत बरादरान है, मैं करोड़ सलाम करता हूँ, फखरुद्दीन राजी, बल्कि अहले सुन्नत के इमाम हैं जिन्होंने हजरत अली को करम अल्लाह लिखा है। बाकी सब ने रजी अल्लाह लिखा, उन्होंने लिखा करम अल्लाह वजहुल करीम। ये तारीख मेरे जवानों, तो ये सियाने बंदे हो, तो मैं मुश्किल बात आपको करने जा रहा हूँ। ये सबसे पहले तारीख तसन्नो में इमाम फखरुद्दीन राजी हैं जिन्होंने हजरत अली को करम अल्लाह लिखा। शकीरदान ने कहा आपने सबको रजी अल्लाह कहा, हजरत अली को करम अल्लाह कहा। इसकी वजह उन्होंने फरमाया कि ये वो चेहरा है जो कभी बुतों के सामने झुका ही नहीं। ये वो चेहरा है जो कभी बुतों के सामने झुका ही नहीं। उन्होंने कहा जी बचपन में भी, बारीक गाल सुन रहे हो, बचपन में भी उन्होंने बताया, बचपन में भी ये भी अली का करम अल्लाह होना ईमान अबू तालिब का सबूत है। तो एक बंदा बात लेगा, उसकी आप मुझे दलील पूछो तो दलील ये है, बच्चे सुनते नहीं देखते, बच्चे सुनते नहीं देखते। सारे बंदे मेरे अपने हो, खुदा की कसम, जिस घर में वालिदैन को रवाज है ना नमाज का, बच्चे रींगते रींगते मुसल्ले पे आ जाते। नहीं सहमत करो, जिनके घर में माहौल है वो तो मेरी तारीफ करो, नहीं, क्योंकि बच्चे वालिदैन को पिक करते देखते। ये पिछले दिनों पे एक कमर्शियल चल रहा था कि बाप बच्चे के सामने सिगरेट पी रहे, तो बच्चा पेंसिल को हाथ लगा कि जैसा बाप करता है ना वैसा औलाद करना शुरू कर देते। अगर बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हो, खुद अच्छा बन। अजीब, लेकिन मेरे मरहले में अजीब है कि अंदर बह के आखना पुत्र बाहर आख अबू कोई नहीं, अंदर आप वो हैं आखना पुत्र आखो अबू का कोई नहीं। तो उस बच्चे सच्चे के जो जाना जिन्होंने घरों तबलीग है वे मरे तो बाप उजू। अगले दिन मेरे नाल इंज हुई है, मैं बुआ खड़काया तो ना मैं क्या पुत्र अबू का पता था, उसका क्या अबू पे आंदे ने अबू सुते अबे बच्चा सी ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਸੰਭਲੀ नहीं, पता क्या अबू पे आंदे ने अबू सुते हैं। बच्चे है सबका, यानी ये रवाज है कि जैसा बाप करेगा वैसी औलाद करेगी। मुझे कुरान की इज्जत की कसम है, फखरुद्दीन राजी का इस बात का जवाब देना कि अली बचपन में भी बुतों के सामने नहीं झुका, ये दलील है। अगर अली के वालिदैन कभी झुके होते, अगर अली के वालिदैन भी कभी झुके होते तो उनको देखा देखी। चलो एक और बात करूं, अली मुहाफ़िज़े तौहीद है। ये जितने भी अकीदे बने हैं वो खौफ की वजह से, अल्लाह छोड़ के बंदे जिसके सामने झुके वो खौफ की वजह से। यानी बस्ती में सांप आया, सांप ने 2-3 बंदे मार दिए, उन्हें सप की पूजा शुरू कर दी, ये मार दे तो ये जिंदा कर। ये तारीख शिर्क पढ़ रहा हूँ मैं। उन्हें सप की पूजा शुरू की, सूरज को ग्रहण लगा, खौफ आया, उन्होंने सूरज की परस्ती शुरू कर दी। सितारा टूट गया, उन्होंने सितारे की पूजा शुरू कर दी। जो है सबका चलो जेडे बंदे चुप कर गए, बंदे फिरौन अल्लाह मन्ने ने मुहब्बत की वजह से, खौफ की वजह से। यानी बंदों ने सूरज को पूजा खौफ की वजह से, सितारे को पूजा खौफ की वजह से, सांप को पूजा खौफ की वजह से, फिरौन को पूजा खौफ की वजह से। अली इतना बड़ा मुहाफ़िज़े तौहीद है, लफ्ज़ की कदर कीजिएगा, अली इतना बड़ा मुहाफ़िज़े तौहीद है, आते ही सांप के 2 टुकड़े करके कहा सांप खुदा नहीं। सांप के 2 टुकड़े करके कहा सांप खुदा नहीं, सितारा दर पे बुला के कहा सितारा खुदा नहीं, सूरज पलटा के कहा
سورج خدا نہیں اور خود سجدہ کر کے کہا بندہ خدا نہیں.